All the students, first of all, I would like to ask if you can hear my voice clearly. Is my voice clear to all the students? So today we will start with a new topic that is about the physiological movement and food shedding. Before we start on this topic, I would like the students if they have any questions from the last topic that we covered regarding the periodontal ligaments. So you have 5 minutes of this lecture in which you can ask me question regarding the previous topic. I can just revise any of the topics if you want. And previously, I think when I left the last lecture, there was a question from a student regarding the septal fibers. So what you need to know that like any other periodontal ligaments, transseptal fibers, they can also remodel. But the only difference between the other periodontal fibers and transseptal fiber is that transseptal fibers require force for a bit longer duration so that they can adapt accordingly, okay, as compared to the other fibers. So this is the reason why, in order to avoid orthodontic relapse, so that the roots or teeth do not come back to their older position, you have to apply force on transseptal fibers for a longer duration so that they adapt accordingly. Otherwise, all the periodontal ligaments, they have the fibroblast cells arranged around them, and that is how, like any other periodontal ligaments, all these periodontal fibers can adapt with the help of activity of the fibroblast. So if you have any question, other question regarding the previous topic, you are most welcome to ask. So starting with the next chapter, that is chapter 10 in your books, the physiological movements. In this lecture, we will be covering different patterns of the movements that are going to occur. Then we will discuss in detail the pre-eruptive movements, eruptive movements, then the histological features that we can
observed during both these type of movements. And lastly, we will discuss what are the possible factors that are thought to be responsible for pre-eruptive as well as the eruptive movements. And then we will find out which factor actually is responsible for these movements. So first of all, starting up with the pre-eruptive movement, before that, I'll just revise the different patterns of eruptions or of movements that are known to us. First of all is the pre-eruptive movement, the eruptive movement, and then is the post-eruptive movement. Starting up with the pre-eruptive movement, so as the name is very clear that these are the movements that occur before the tooth erupts into the oral cavity. So this is how we can define this type of tooth movement. So the movement made by both the deciduous and permanent teeth. Basically, it is not the movement of the but the movement of the tooth jam. So as we know that before the teeth erupt into the oral cavity, it is first of all going to develop through the different stages, and this is how we define it. Both the deciduous and permanent teeth, before they erupt into the oral cavity, they contain different positions within the jaws. इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका हर दांत का कुछ जाम जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो रहा होता है, इसी तरह से जो मैक्सिला और मैंडिबल हैं उनकी भी तो ग्रोथ होती है ना बेटा। तो जिस तरह जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है उस हिसाब से जॉ के अंदर जो कुछ जाम है उसकी पोजिशनल चेंजेस भी आती है। इस किस तरह से आती है डिस्कस देम ahead. So now starting up first of all with the pre-eruptive movement, we will first of all discuss the pre-eruptive movement of the deciduous teeth. These are the first teeth to erupt in the oral cavity. So you see that एक तरफ जो है आपके deciduous teeth की development होगी before during the pre-eruptive movements. साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है कि आपके जो जॉज होते हैं जो मैक्सिला और मैंडिबल है उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैक्सिला मैंडिबल डेवलप करते हैं दे आर इन वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। तो उसी स्मॉल साइज मैक्सिला या मैंडिबल में आपके डिसिडुअस टीथ के टफ जर्म पड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जॉ जितना छोटा होगा उतने ही जो ये टफ जर्म है वो एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं, ठीक है। उसको आप कह देते हो that is a situation in which you can observe the crowding of the tooth germs within the jaws. Even second point tells you about that the rapid growth of the tooth germ and also the jaws, it is going to lead to a situation in which the tooth germ are going to be in a very crowded position, ठीक है। अभी क्राउडिंग एकदम कैसी होती है वंस योर जॉ हैज कंप्लीटली डेवलप, अब क्या होता है कि विद एवरी पासिंग टाइम दैट jaw is going to increase in size, it is going to increase in its length, width and height, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑब्वियसली वो लेंथ या विड्थ और हाइट में इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होता है कि इन टीथ जैम जो पहले क्राउडेड पोजीशन में होते हैं उनको स्पेस मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। So now the third point, if we focus on third point, इसमें क्या लिखा है, the growth of the jaw permits the tooth jam of second molar to move in a backward position, ठीक है।
अब आपको पता है जब जॉ लेंथ में ग्रो करेगा, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके एंटीरियर टीथ होते हैं उन्होंने चूंकि फॉरवर्ड पोजीशन में आना होता है, जब आपका जॉ की लेंथ और हाइट इंक्रीज करती है तो ये इंटीरियर टीथ का जो टूथ जैम होता है फॉरवर्ड मूव कर देगा। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो सेकंड मोलर रीजन पे जो सेकंड मोलर का टूथ जैम है एज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ और लेंथनिंग ऑफ द जॉ, ये जो सेकंड मोलर टूथ जैम है इट विल मूव इनटू अ बैकवर्ड पोजीशन एज कंपेयर्ड टू द इंटीरियर टीथ। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ग्रोथ के साथ साथ जो दांत पूरी पूरी अपने जो एरिया से मूव करता है एज अ होल, ठीक है, बजाय कि सिर्फ क्राउन या रूट पोजीशन मूव करे, जब भी आपका दांत पूरी तरह से एज अ होल रूट समेत मूव करता है तो उसको आप कहते हैं बॉडीली मूवमेंट ऑफ द टूथ। और बॉडीली मूवमेंट ऑफ द टूथ कब हो रही है? once the length, width and height of the jaw is going to increase in size। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो आपकी होगी प्री इरप्टिव मूवमेंट डेसिडुअस टीथ। ठीक है, उसके बाद आपके डेसिडुअस टीथ का जो टूथ जैम है वो डेवलप करता है इनेमल डेंटिन, इसी तरह से सारे हार्ड टिश्यू डेवलप करेंगे और वो फिर इरप्शन के लिए ओरल कैविटी में आए। ठीक है, then we come to the pre-eruptive movement of the permanent teeth। तो परमानेंट टीथ में क्या होता है कि इन केस ऑफ परमानेंट टीथ जो टूथ जैम होता है तो एज इट इज, जैसे कि डेसिडुअस टीथ है वो दैट इज कवर्ड बाय अ बोनी क्रेप। बोनी क्रेप होता है कि जो एक बोन की जो लाइनिंग होती है दैट इज बेसिकली कवरिंग द टूथ जैम, उसको बोनी क्रेप कहते हैं। ठीक है, so the permanent teeth will be covered by the same bony grip that was covering the deciduous teeth। ठीक हो गया। अब उसमें जो है एंटीरियर टीथ की, एंटीरियर जो परमानेंट टीथ हैं, जो प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं परमानेंट, इनकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। So in case of the anterior teeth, what happens is ये जो permanent tooth jam होता है that lies on the lingual aspect of their deciduous successional teeth। ठीक है, इन केस ऑफ प्रीमोलर्स क्या होता है, अब आपको पता है कि जो प्रीमोलर होते हैं वो deciduous molars की जगह पर रखते हैं। So the premolar is going to be positioned between the position, divergent position का मतलब होता है कि they are spread। एक मीजियल और डिस्टल रूट है, उसके दरमियान में जो है वो आपके परमानेंट डेंटिशन का क्रम वाला सेक्शन है। ठीक है, उस पोजीशन में जो है आपका प्रीमोलर रख करेगा। Now when it comes to the permanent first molar, तो उसका आपको पता है कि there is no successional teeth of the permanent first molar। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि दिस टीथ इज हैज अ स्लाइटली ईजियर इंक्लिनेशन। ठीक है, और जिस तरह से आपका जॉ ग्रो करता जाता है तो ये ईजियर इंक्लिनेशन के बजाय वर्टिकल पोजीशन में आया। ठीक है, क्योंकि जब आपके डेसिडुअस टीथ रप्ट होते हैं तो आपको पता है कि उसी हिसाब से आपके जॉ का साइज है इट इज वेरी स्मॉल। So once you reach the age of 6 to 7 years, तो वो एज होती है जब आपका लोअर फर्स्ट मोलर रब करते हैं। उसमें क्या होता है कि उससे पहले जो है आपका जॉ जो है वो लेंथ में ग्रो करेगा, then there is going to be a space for first molar। Before the first molar, permanent first molar is going to erect in the oral cavity, it is visually inclined, and once the jaw or the lower mandible has grown in its length, तो medial inclination से पूरी vertical position में आ जाता है, and then that is how it erupts into the oral cavity। ठीक है, so this is developing mandible of a young individual, जिसमें आप देख सकते हैं कि अक्सर जो deciduous teeth हैं they are still present in the
pre-eruptive stage and they are surrounded by bony crypt. Okay, that's a bony structure that is surrounding the host before it erupts into the whole cavity. ठीक है, पीछे बिल्कुल एक जगह बनी हुई है। आप देखिए मैंडिबल का साइज जो है, दिस इज द साइज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अबाउट 6 to 7 weeks। पहले की मैंडिबल ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अभी जो परमानेंट फर्स्ट पोजीशन दैट इज स्लाइटली इजीली टिल्टेड, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मैंडिबल ग्रो करता जाएगा, इसकी स्पेस बनेगी और जब फर्स्ट मोलर जो है ये होता है इजीली इंक्लाइन होने के ये प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में आया था। So these are all the pre-eruptive movements of the deciduous as well as the permanent teeth, that how the jaw is going to go in length, width and height, and how these two germs of deciduous and permanent dentition they are going to move before they erupt into the oral cavity। ठीक है, फिर ये एक स्टेज है मिक्स्ड डेंटिशन स्टेज। इसमें आपको ठीक है, ऊपर भी आप देखें फ्लेयर्ड रूट्स हैं, ठीक है। दिस इज जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है जो मैंडिबल में है, दिस इज द फर्स्ट परमानेंट फर्स्ट मोलर, ठीक है। और जो उसके पीछे जो अभी बोनी क्रेस्ट में प्रेजेंट है दैट इज द परमानेंट सेकंड मोलर। सो एज द जॉ इज गोइंग टू इंक्रीज इन लेंथ, जो मीजियल टेंट है इसका खत्म हो जाएगा और फिर प्रॉपर जो दांत है एक वर्टिकल पोजीशन में आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ अनदर इमेजेस दैट शोज यू हाउ दिस pre-eruptive movements are going to occur। उसके बाद आप लोअर टीथ में देखेंगे कि अगर आप पीछे से स्टार्ट करें तो सेकंड मोलर इज इन द bony crypt, फर्स्ट मोलर हैज erupted। उससे आगे अगर आप आएंगे तो दैट इज द deciduous सेकंड मोलर, जिसके नीचे इसकी रूट्स के दरमियान जो है फर्स्ट मोलर सॉरी सेकंड प्री मोलर, okay? So if I show you this in the image through the arrowhead, ठीक है, ये जो मैंने एरो अभी बनाया है, this arrowhead is actually showing the position of the second premolar, जो कि कहाँ पे present है, between the flared or divergent root of the deciduous second molar, ठीक है। इसी तरह से इस दांत के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखें तो maxillary deciduous second molar, ठीक है। इसकी रूट्स के दरमियान में पीछे से जो दांत रख हो रहा है दैट इज द maxillary second premolar, ठीक है। इसके भी अगर मैं आपको एरोहेड से शो करूं, ठीक है, ऊपर जो मैंने एरोहेड बनाया, this is the position of the unerupted second maxillary second premolar that is present under the deciduous second molar, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी देखो, इससे अगले वाला जो दांत है that is the first premolar। So this is how the permanent teeth are positioned at the pre-eruptive stage। ठीक है, लास्टली आपको इस इमेज में मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, दैट इज द पोजीशन और द इरप्टिव पोजीशन ऑफ द
maxillary second molar. Third arrow that I have drawn over here. Okay. Posterior position. This is the second premolar, second dorsal, maxillary second molar. अब इस केस में क्या होता है कि once the maxilla has not gone to its complete length, उस वक्त ये जो maxillary second molar का बद है, this is present in a distal position. ठीक है? But once the maxilla grows to its complete length, ये distal position से क्या है, vertical position में आ जाता है, and then it erupts into the oral cavity and maintains it up to the position. So this is how the different types of pre-eruptive movements occur in case of the Cephus as well as the permanent dentation. So now we come to the two very important factors that lead to these type of movements. Number one हमने डिस्कस किया था कि एक तो बॉडी मूवमेंट होती है उस जाती, ठीक है. सेकंड इसमें लिखा है ग्रोथ पैटर्न ऑफ फुट जंप इन विच पार्ट ऑफ इट रिमेन्स फिक्स्ड लीडिंग टू चेंज इन सेंटर ऑफ फुट जंप. ठीक है. तो इस सेकंड का जो मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ फुट जंप का चेंज होता है. So the two important factors that are very important regarding the pre-eruptive movement, these are the bodily movement of the root stem. Bodily movement will be once the jaw is going to grow in length, height and width. इसी हिसाब से जो है इसका जो root stem होता है, it is going to move. So this is how these two factors are important in case of the pre-eruptive movements. Secondly, आपको पता है कि जो दांत होता है या tooth jam होता है, that is surrounded by a bony crypt. Clear नहीं. So I will just revise the pre-eruptive movements. Okay,
in case of eruptive movements, आपने याद रखना है कि there is these types of movements are going to occur in both the permanent as well as the deciduous dentition. In case of deciduous dentition, आपने याद रखना है कि when the deciduous dentition is developing, इनके जो कुछ टर्म होते हैं that these are present in the developing mandible. जो mandible होता है that is of a very small size. जिस तरह से mandible जो है वो ग्रो करेगा उसी तरह से ये जो टूथ जैप होते हैं एंटीरियर टीथ के वो एंटीरियर पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से जो पोस्टीरियर टीथ के जो होते हैं जो मोलर का टूथ जैप है वो इन्हें बैकवर्ड पोजीशन में होता है, ठीक है। तो जिस तरह से मैंडिबल जो है वो ग्रो करेगा उसी तरह से जो क्लम्पिंग होती है डिसिडुअस टीथ टूथ जैप की वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। जब इनके जब परमानेंट टीथ में आना होता है, ठीक है, तो that are basically going to replace the deciduous dentition. These are basically known as the successional teeth. वो क्या करते हैं? They are placed in basically the same bony grip as are the deciduous teeth. अब उसके हिसाब से इनकी पोजीशन क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि all the deciduous, all the permanent teeth, they are present at the lingual aspect of the deciduous teeth within the jaw, ठीक है। और होता क्या है कि in case of maxilla जो molar होता है that is first going to grow in a distal position, and when the maxilla is going to attain its full length, that distally placed second molar that is going to come into a vertical position. Same happens in case of the mandibular first molar. ये जब maxilla की length grow नहीं की होती, ठीक है, at the age of 6 to 7 years, once the mandible is going to grow, the first molar होता है before it can have the sufficient space, you can see a slight mesial tilt in its position in this image, ठीक है। फिर जिस तरह से ये मैंडिबल अपनी लेंथ में ग्रो करेगा बैकवर्ड भी, उसकी विड्थ भी इंक्रीज करेगी और हाइट भी इंक्रीज करेगी। इसकी वजह से क्या होता है, दांत जो है वो प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, वो स्पेस होने की वजह से ओरल कैविटी में इरप्ट करता है। इसी तरह से आपको मैंने बताया था कि ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो किस तरह से जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अंडर द डेसिडुअस टीथ। ये बेसिकली एक स्टेज है द मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज, ठीक है, जिसमें आपके मैक्सिलरी और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जो है वो ओरल कैविटी में इरप्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले आए मैंडिबल की तरफ। जो मोलर यहाँ पे जो इरप्ट हुआ हुआ है, ठीक है, उससे पीछे जो है दिस इज द सेकंड मोलर दैट इज सराउंडेड बाय द बोनी एंड ग्रिप still in an unerupted position। इसको भी आप देखिए अभी एक mesially tilted है, ठीक है। जब ये mandible further grow करेगा तो ये जो mesially tilted tooth है this is then going to come into a vertical position, ठीक है। फिर आपका आ गया first molar that is already erupted। जो permanent premolar है इस second premolar वो आप देखें that is present under the deciduous second molar। This is how it is positioned in between the two divergent root of the deciduous molar. Same is in the case of the maxilla। maxillary second molar अभी erupt नहीं हुआ हुआ, उसके हिसाब से आप देखेंगे अभी जो maxilla है उसकी भी पूरी अभी डेवलपमेंट या ग्रोथ अभी नहीं हुई। It is developed but it has not grown to its complete length। जब ये complete length पे grow नहीं किया होता maxilla, उस वक्त अगर आप रेडियोग्राफ में सेकंड मोलर की पोजीशन देखें मैक्सिलरी सेकंड मोलर की, you can see that it is slightly distally placed, and once the maxilla is going to attain its complete length, you will observe that the distally placed second molar, it is then going to come into a
वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर आपको पता है ऐसे इरप्ट हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एरोहेड आ रहा है at the position of maxillary second premolar, and the crown of that maxillary second premolar is present slightly lingually but is present in between the divergent root of the deciduous maxillary second molar, ठीक है। दो चीजें जो अहम होती हैं रिगार्डिंग द प्री इरप्टिव मूवमेंट्स वो होती है, एक तो इसकी बॉडीली मूवमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पे उसने फर्स्ट पॉइंट बताया है। और सेकंड पॉइंट होता है कि बॉडीली मूवमेंट होती किस वजह से है, जब सेंटर ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू चेंज। सेंटर ऑफ क्वेश्चन डाउन का हमेशा तब चेंज होता है जैसे जैसे मैक्सिला और मैंडिबल जो है वो साइज में और विड्थ में और हाइट में ग्रो करते हैं, ठीक है। So this is basically the basic concept of these pre-eruptive movements, both in case of the deciduous as well as the permanent teeth. Secondly, आपको पता है कि जो सारी movements होती हैं, these are basically occurring within the bony and crypt before the tooth eruption to the oral cavity. तो इसको आप इंट्राओसियस मूवमेंट्स भी कह सकते हो। इंट्राओसियस ऑसियस कहते हैं बोन को, ठीक है। आपको पता है कि जिस जिस तरह से ये दांत की मूवमेंट्स होंगे उसी तरह से जो बोनी क्रिप्ट होता है उसकी रीमॉडलिंग भी उसी हिसाब से होती है। फर्स्ट कर लें कि पिछली ये जो पिक्चर है इसमें हमने बात की है कि यहाँ पे जो सेकंड मोलर है मैंडिबल, इट इज स्लाइटली मीजियली इंक्लाइंड। तो मीजियल इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है कि इस दांत के जब प्रेशर पड़ता है ना तो मीजियल साइड की जो बोन है उसकी रिजॉर्प्शन होती है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या होता है कि डिस्टल साइड पे जो है बोन की डेपोजिशन होती है। सो दिस इज हाउ द बोन रिमॉडलिंग आल्सो गोज ऑन टू अकर ड्यूरिंग दीस प्री इरप्टिव टूथ मूवमेंट्स, ठीक है। So bone remodeling is also one of that occurs during the pre-eruptive movements. This is also considered among the histological features of the pre-eruptive tooth movement. So whenever you are asked about the histological features that are observed during these movements, तो उसमें आप ये जो bone remodeling होती है within the bony and crypt उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मीजियल टिल्ट है अगर तो मीजियली वहाँ पे बोन डिसॉर्प्शन होगी और डिस्टल साइड पे बोन की डेपोजिशन होगी। So this is how the bone remodeling process continues to occur during the pre-eruptive tooth movements, ठीक है। ये सारे वही आपको पॉइंट्स आगे पहले हमने डिस्कस किए, ठीक है। The permanent dentition, it is lingually placed with respect to the deciduous predecessors, ठीक है, and the tooth is going to change its position within the bony crypt and crypt according to the growth of the jaws, ठीक है। ये एक histological image है, ठीक है, in case of pre-eruptive movements of the permanent teeth, ठीक है। सो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि ये एक टूथ जम बड़ा हुआ है बिटवीन द टू रूट्स ऑफ अ deciduous molar, ठीक है। तो ये जो दांत है जो जिसके नीचे आपको एक क्राउन नजर आ रहा है प्रीमोलर का, दिस इज द प्रीमोलर क्राउन ऑफ अ प्रीमोलर, और ये किसके अंदर पड़ा हुआ है बिटवीन द डाइवर्जेंट रूट्स ऑफ द deciduous second molar, ठीक है। इसके साथ जो दांत रख हुआ है दिस इज द histology of the permanent first molar. So this is how you can observe them in a histological image. कि शायद इस तरह का इमेज आपकी जो है बुक में भी
given. Okay. Secondly, we come to another type of movement that are known as the eruptive movements. These are the movements that can move a tooth from its position within the bone of the jaw to its functional position in the oblivion. Very clear. This is from the name that these are the movements that you can see once the tooth is going to pass through the bone of the jaws and come into the functional position in the oral cavity. So this is how you can define the eruptive movements. Then we come to some of the histological features of the eruptive movements. So before we start this, do you have any questions regarding the pre-eruptive movements? ये आवाज वगैरह का तो नहीं मसला? Any question you have regarding the pre-eruptive movements, you can ask. So that we can move to the next topic. इंट्राऑस्सियस जो पोजीशन होती है ना, आपको बताया था ऑस्सियस इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर द बोन. ठीक है, इंट्राऑस्सियस पोजीशन ऑफ टूथ क्या होती है? व्हेन द टूथ इज प्रेजेंट इन द बोनी क्रेस्ट. ठीक है, इस इमेज को अगर आप देखो ना तो इसमें अक्सर आप दांत देखोगे नीचे. ठीक है, दे हैव नॉट erupted into the oral cavity. So this is basically the intraosseous position of these tooth when these tooth are surrounded by a bony crypt and they have not erupted in the oral cavity. This is very clear. अब होता पता क्या है? जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि when permanent teeth is developed, new root develops. Obviously the new root is formed. ठीक है, इन इसमें क्या होता है कि जब आपका डेसिडुअस टीथ करप्ट होता है, ठीक है, उसके पीछे से अब परमानेंट टीथ में आना होता है. ठीक है, परमानेंट टीथ की जो फोर्स होती है ना, वो क्या होती है? वो दैट फोर्स वो क्या करती है कि जब ऑब्वियसली आपके परमानेंट टीथ में इरप्ट होना है, उसकी अपनी रूट डेवलप हो रही होती है. जैसे जैसे परमानेंट टीथ की इरप्शन एज आती है तो वो परमानेंट टीथ का जो क्राउन होता है दैट इज गोइंग टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर onto the root of the deciduous teeth. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो deciduous teeth की रिजॉर्प्शन हो जाती है अक्सर केसेस में. बहुत रेयर होता है, स्पेशली इन केस ऑफ मोलर्स. ये कभी-कभी जो छोटी-छोटी रूट्स हैं वो रिटेन रह जाती हैं. अदरवाइज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ the crown of the permanent molar permanent teeth, उसके जो इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से उन बोन्स की जो है वो रिजॉर्प्शन होती है. अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी जो है छोटे बच्चे का दांत निकलता है तो सिर्फ क्राउन सेक्शन होता है, तो रूट इज नॉट देयर. उसकी वजह ये होती है कि रूट रिजॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ परमानेंट टीथ प्रेशर, उसकी वजह से वो रिजॉर्ब हो जाता है. ठीक है, जिस तरह से ये टूथ जर्म होता है, अगर आपने टूथ डेवलपमेंट पढ़ी हो, टूथ डेवलपमेंट जो है वो डेसिडुअस टीथ की भी उसी तरह से होती है और परमानेंट टीथ की भी उसी तरह से पूरी होती है कि पहले उसका क्राउन सेक्शन बनता है, इनेमल डेंटिन बनेंगे, फिर साथ ही जो है उसकी
रूट डेवलपमेंट होती है। तो जो परमानेंट टीथ होता है उसकी ऑब्वियसली इसी तरह से सारे स्ट्रक्चर जो है उसके वो डेवलप होते हैं और फिर वो एक इरेक्टिव पोजीशन में आता है। ठीक है। So the root of the previous tooth or the deciduous tooth will basically be resolved. So now coming to the histological features that you can observe during the eruptive tooth movements. Okay. The first point says that the periodontal ligaments and remodeling contributes to the eruptive movements. ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है जब भी रूट्स की जो eruption होती है तो अगर आप मॉर्फोलॉजी में आपने अक्सर देखा होगा कि रूट इज कॉमनली मोस्टली erupted once the two-third of the root has developed। ठीक है। तो उसमें जो ज़्यादातर eruptive movements में रोल होता है वो होता है आपके periodontal ligaments का। उसकी जो फोर्सेस होती हैं periodontal ligaments की वो बेसिकली आपकी eruptive जो movements होती हैं उसमें का एक रोल होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि periodontal ligaments they have a significant number of fibroblasts that are present around them। ठीक है। These fibroblasts basically इनकी जो contractile ability होती है that they can move from one place to another and wherever their activity is required they convert into myofibroblasts and they can secrete numerous amount of proteins। ठीक है। जहाँ पे भी ये प्रोटीन्स क्रिएट करेंगे ठीक है उसकी वजह से क्या होता है कि द रीमॉडलिंग प्रोसेस और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पेरिडोनटल लिगामेंट्स बिकम्स वेरी फास्ट। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आप देखिए इन केस ऑफ सक्सेशनल टी द फाइब्रोसाइडल फॉलिकल्स एंड forming a connection with the lamina propria of oral mucosa by a strand of connective tissue। ठीक है। So now in case of eruptive movement what is going to happen, ये अगर आप इमेज देख रहे हो तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम हमने पढ़ी है the fibroscalar follicles are a connection with the lamina propria of oral mucosa by a strand of connective tissue। Now you have a look at this image। ठीक है। इसमें ये जो फर्स्ट एरो है this is representing the alveolar bone part। ठीक है। सेकंड जो एरो है this is representing the part of the oral epithelium जिसका कि इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है। उसके बाद आपको ये ब्लैक कलर की जो थिक से एरो हेड्स नजर आ रहे हैं this is basically a strand of connective tissue। Now this purple colored strand of connective tissue this is connected to the lamina propria through the cells। इसके दरमियान जो cells हैं these are basically the fibrocellular follicular cells। ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो alveolar bone वाला पार्ट है इसमें यहाँ पे एक पहले स्पेस आती है। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो
ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे एरो पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ से बेसिकली क्राउन जो है वो टूथ का वो इरप्ट करता है, ठीक है। दिस इज द रीजन फ्रॉम वेयर द क्राउन ऑफ द टूथ इज गोइंग टू इरप्ट। इसके इससे पहले जो है when the tooth is almost completely developed, क्योंकि टोन में इरप्ट होना होता है, क्या होता है कि there is the presence of fibrocell or follicular cell that is covering the bone. Those cells basically form an association between the lamina propria of the oral epithelium, and they also develop a strand of cells, ठीक है। ये strand of cells जो हैं basically इनकी contraction से क्या होता है, there is a space that is developed that actually assists in the eruption of the tooth into the oral cavity. Now this strand of cell जो कि आपको ये thick arrowheads में नजर आ रहे हैं, इसको आप कहते हो gubernacular canals, ठीक है। ये जो strand है इसको आप कहते हो gubernacular cord, ठीक है। ये जो बीच में space बनी है between the two bones, adjacent bone, इसको आप कहते, this is basically a canal-like structure. This is known as the gubernacular canal, ठीक है। The gubernacular cord and the gubernacular canals, this is basically a channel through which the tooth is going to erupt into the oral cavity, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसमें जो है वो पॉइंट देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इस पिक्चर में, इस स्लाइड के ऊपर, the channels that carry this cord are known as gubernacular canals। ठीक है, ये जो cord-like structure है ना, that is hematoxylin stain, this is known as the gubernacular cord, and the area in which this cord-like structure is present is known as the gubernacular canals, ठीक है। अब होता क्या है कि once the tooth is going, or the crown of the tooth is going to apply pressure on the bone so that it can erupt into the oral cavity, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कैनाल है it is going to widen up, ठीक है। अब आप देखेंगे जब tooth जो है that is completely developed and it is ready to erupt into the oral cavity, that pressure that it is going to exert on the bones is going to initiate the osteoclastic activity in that particular part, जहाँ से आपके जो bony encrypt होता है उसकी bone resorption start होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये cord like structure के साथ आपका जो tip of the crown है वो attach हो जाती है, ठीक है। This is how the eruptive pathway of the tooth is formed, and then the tooth is going to erupt into the oral cavity. Okay, so we will stop our lecture at this point, and now you have 10 minutes to ask any question up till the histology of the eruptive movements. We will continue this in our next lecture.
इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें, बेसिक्स हमेशा याद रखिए, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी मच रिलेटेड टू द मॉर्फोलॉजी। तो आपको पता है कि जो आपके जो प्रीमोलर्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर, वो आपके डिसिडुअस फर्स्ट और सेकंड मोलर्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और जो आपका परमानेंट मोलर्स होते हैं, उनका कोई सक्सेशनल टीथ नहीं होता, यानी कि वो ऑलरेडी किसी दांत की जगह पे नहीं आते, दे आर जस्ट गोइंग टू इरप्ट इनटू न्यू स्पेस। न्यू स्पेस में कैसे आते हैं? क्योंकि विद एज आपका मैंडिबल ग्रो करता है, तो आपके परमानेंट फर्स्ट मोलर सेकंड मोलर की जगह बन जाती है, ठीक है। Only the premolars, obviously, they are not present in your deciduous dentition. So in वो सिर्फ परमानेंट में ही आते हैं, तो परमानेंट पे वो किसकी जगह आ रहे थे? इन प्लेस ऑफ द deciduous molars. This is a very basic thing that you need to remember. Obviously, देखिए ना, जब till the age of अगर आप तो करप्शन की एजेस देखें ना, तो जो आई थिंक अबाउट 8 to 10 years की एज में आपके डिसिडुअस जो मोलर्स हैं वो एक्सफोलिएट कर जाते हैं या गिर जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट मोलर्स, ठीक है। आपको पता तो है कि deciduous teeth, all the deciduous teeth, they are replaced by the permanent teeth. So the deciduous teeth are replaced by the permanent premolars, और जो permanent molars होते हैं वो erupt करते हैं when the your jaw are going to increase in size. deciduous molar की जो eruption है वो आपको बताया था in case of pre-eruptive movements। सबसे पहले जो टीथ ग्रो करते हैं वो ऑब्वियसली फोटोपिया होता है deciduous teeth को, वो पहले अपनी जगह पे आता है, ठीक है। Then all these deciduous teeth they are replaced by the permanent dentition. So the permanent dentition is basically going to replace all of your deciduous teeth. Either they are anterior teeth or they are the molars. So once all your permanent teeth have erupted sequentially, your deciduous teeth are going to exfoliate. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अक्सर के बच्चे के दांत हिल रहे होते हैं, जब वो दांत निकलता है तो उसकी रूट नहीं होती, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था कि वो रूट इसलिए नहीं होती, सिर्फ क्राउन वाला सेक्शन होता है अक्सर केसेस में। वो इसलिए होता है कि जो आपकी रूट होती है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द परमानेंट टूथ, उनकी जो डेसिडुअस केस की रूट होती है वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ क्राउन वाला सेक्शन होता है। स्लाइड नंबर 8। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये ठीक है, इसके बारे में आपने याद रखना है कि दिस इज बेसिकली द स्टेज ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन। आपकी जब ये प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी ना, तो ये मैं आपको मॉडल्स एक दफा दिखा भी दूंगा,
ठीक है, पहले मैं स्लाइड नंबर 8 एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपको मैं बताऊंगा एक्सट्रा। ठीक है, तो दिस अब ये किस तरह से होता है कि अगर आप सिर्फ अभी मैंडिबल के ऊपर फोकस करें, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको नीचे ये एरो हेड दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एरो हेड जो है मैंडिबल पे जो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, ये आपको पॉइंट आउट कर रहा है एट द पोस्चर ऑफ परमानेंट प्रीमोलर। ठीक है, अब ये परमानेंट प्रीमोलर कौन सा है? ये सेकंड प्रीमोलर है। ठीक है, इससे आगे वाला जो है दैट इज द फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, अब ये सेकंड प्रीमोलर कहाँ पे पड़ा हुआ है? इट इज बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन द डाइवर्जेंट रूट्स ऑफ द डेसिडुअस सेकंड मोलर। ठीक है, बेसिकली जो परमानेंट प्रीमोलर्स हैं वो रिप्लेस करते हैं डेसिडुअस मोलर्स को। ऑब्वियसली फिर ये एक्सफोलिएट हो जाएगा। ठीक है, और इससे पीछे कौन से दांत है? पीछे वाला दांत है इस प्रीमोलर से पीछे, दैट इज द परमानेंट फर्स्ट मोलर। ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्टेज ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन। मिक्स्ड डेंटिशन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इसके ऊपर फोकस करें तो एक तो मैंने ये मैंडिबल में प्रीमोलर पॉइंट आउट किया हुआ है, इससे जो पीछे वाला दांत है दैट इज द परमानेंट फर्स्ट मोलर दैट इज ऑलरेडी इरप्टेड इनटू द ओरल कैविटी। मिक्स्ड डेंटिशन इसलिए कहते हैं कि अभी दूसरी डेसिडुअस डेंटिशन भी इसमें इरप्टेड है और कुछ जो है वो परमानेंटली भी ओरल कैविटी में इरप्ट कर चुके हैं। ठीक है, so this is that is why that stage is known as the mixed dentation stage, at which both deciduous and permanent dentation is present in the oral cavity. तो ये बेसिकली एक स्टेज आप बता सकते हो, प्री इरप्टिव स्टेज है फॉर सम ऑफ द परमानेंट डेंटिशन। ठीक है, मैंडिबल के केस में देखो ये सेकंड प्रीमोलर जो है जिसकी तरफ एरो हेड पॉइंट आउट कर रहा है, दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द रूट्स ऑफ द deciduous फर्स्ट मोलर। ठीक है, और इसके सेकंड मोलर के अगर आप फोकस करें पीछे, अगर हम आ जाएं, सेकंड मोलर आपको नजर आएगा उसने मीजियली टिल्ट हुआ है। मीजियली ये टिल्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जो मैंडिबल है वो उसने पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। जब ये मैंडिबल प्रॉपर अपनी डेवलप हो जाता है तो यही जो मीजियली प्लेस या इंक्लाइंड सेकंड मोलर है ये प्रॉपर वर्टिकल या स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है ताकि ये सीधी तरह से ओरल कैविटी में इरप्ट हो सके। ठीक है, अब आप आ जाए मैक्सिला की तरफ, उसमें आप देखोगे जो मैंने सबसे आखिरी वाला जो दांत है दैट इज मैक्सिलरी सेकंड मोलर, परमानेंट मैक्सिलरी सेकंड मोलर, उसकी तरफ मैंने पॉइंट आउट किया। इसमें आप देखिए कि मैक्सिला इज स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, इट हैज नॉट ग्रोन टू इट्स कंप्लीट लेंथ। इसमें क्या होता है कि जब अभी मैक्सिला ने पूरी तरह अपनी लेंथ पे ग्रो नहीं किया, सेकंड परमानेंट सेकंड मोलर के लिए भी रखने की जगह नहीं है, तो उस वक्त जो परमानेंट सेकंड मोलर होता है ये डिस्टली प्लेस होता है, और जब मैक्सिला पूरी अपनी लेंथ को गेन कर जाता है उस वक्त यही दांत जो है वो प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में होके ओरल कैविटी में इरप्ट कर जाता है। इससे आगे आप आ जाए तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर इरप्ट हुआ है। ठीक है, और एक और मैंने इसके ऊपर जो एरो पॉइंट आउट किया हुआ है जो अभी दांत, दिस इज द सेकंड प्रीमोलर, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है? इन बिटवीन द डाइवर्जेंट रूट मैक्सिलरी डेसिडुअस सेकंड मोलर। ठीक है, ये बेसिकली इन दांतों को प्रीमोलर जो है वो डेसिडुअस मोलर्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, so this is what you need to remember in this picture. You can take an image of this picture and you can then revise that at your home, या even आप बुक का टेक्स्ट भी पढ़ोगे तो आपको ये डायग्राम बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। सेकेंडली आपने से एक ने पूछा है इंट्रोसियस एक्स्ट्रासियस, वो भी मैं आपको इसी पिक्चर को समझा देता हूँ। एक इंट्राओसियस पोजीशन होती है, अगर यहाँ पे आप मैंडिबल की तरफ देखें तो मैंडिबल का सबसे जो एंड पे जो दांत पड़ा हुआ है दैट इज मैक्सिलरी सॉरी द मैंडिबुलर सेकंड मोलर, तो अभी बोन के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं द इंट्राओसियस पोजीशन ऑफ द टूथ,
यानी कि दांत जो है भी बोन के अंदर प्रेजेंट है। ऑसियस इज द वर्ड यूज फॉर बोन। तो इन एक्स्ट्रा ऑसियस क्या होगा जब दांत जो है वो इस बोनी एंट्रेक्ट में से निकल के ओरल कैविटी में आ जाता है, दैट इज द एक्स्ट्रा ऑसियस पोजीशन। So this is how it is. Hope you have understood it till now. If you have any further clarifications, you can even ask me in the WhatsApp group. ठीक है, इसको भी आप लोग यूटिलाइज करें। If you can't understand anything over here, I can guide you whatever you don't understand. Okay, so this is how it is. We will try to revise this. If you don't have understood जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है, ताकि फिर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे मूव करें।